1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 Corinthians 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, Proverbs 24 चैप्टर, 25 चैप्टर, 26 चैप्टर। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम आपके वचनों के ज्ञान में बढ़ते हुए रहने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी सहायता को मांगते हैं। हम मांगते हैं कि हमारे जीवन के अंदर तेरा वचन उज्ज्वलित होता रहे और हम उसको समझ पाए और उसके अनुसार हमारे जीवन में फिट एंड फिक्स बनते जाए। जिस मंजिल में परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है उसमें पहुंचने के लिए हम व्यवस्थित बनते जाएं, सिद्ध बनते जाएं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। सेकेंड Corinthians 8 चैप्टर और 9 चैप्टर पढ़ेंगे। 8 चैप्टर से शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन। He stirreth them up to contribute to the saints, commendeth Titus, etc. First verse पढ़ेंगे। Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God, insomuch that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. And herein I give my advice, for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. For I mean not that other men be eased, but ye burdened, but by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. As it is written, he that had gathered much had nothing over, and he that had gathered little had no lack. But thanks be to God, which put the same earnest care into the heart of Titus for you.
For indeed he accepted the exhortation, but being more forward of his own accord, he went unto you. And we have sent with him the brother, whose praise is in the gospel throughout all the churches. And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this grace which is administered by us to the glory of the same Lord and declaration of your ready mind. Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us, providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. And we have sent with them our brother, whom we have oftentimes proved diligent in many things, but now much more diligent upon the great confidence which I have in you. Whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you, or our brethren be inquired of, they are the messengers of the churches and the glory of Christ. Wherefore shew ye to them and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. Chapter 9. He sheweth why he sent the brethren, and stirred them up to give bountifully. For first verse से पढ़ेंगे. For as touching the ministering of the saints, it is superfluous for me to write to you. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago. और एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट वर्स से. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked very many. Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, ye may be ready. Lest haply, if they of Macedonia come with me and find you unprepared, we that we say not yea should be ashamed in this same confident boasting. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had notice before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.
For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. Whilst by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them and unto all men, and by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Thanks be unto God for his unspeakable gift. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। 8 और 9 अध्याय पढ़ना है। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे 8 अध्याय पहले वचन से। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय पहले वचन से। उदारतापूर्वक दान देना, पहले वचन से। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकेदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। और जैसे हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। 6 वचन से आगे पढ़ेंगे। इसलिए हमने तीतुस को समझाया। ओके, कोई भी मैन ऑफ गॉड के आप अपने आप को दे देते हैं उनके सेवा में, तभी जाकर वो कुछ आपको समझाते हैं, नहीं तो वो आपको नहीं समझाएंगे। डिस्टेंस रहेगा, गैप रहेगा। ओके, कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी देखो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। सिर्फ प्रेयर में नहीं, सिर्फ वचनों में नहीं, सिर्फ उपवास में नहीं, सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ गवाहियों में नहीं, लेकिन हमारे संपत्ति धन को भी हमने और अपने आप को भी देते रहने में हमने बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। मेरा तो फैसला है कि इसके बाद का समय मैं बहुत बढ़ चढ़ कर प्रभु के राज्य में बोऊंगी। तब ये तो बोऊंगी मतलब बोना शुरू कर चुकी हूँ मैं। ओके, तो इस प्रकार से है कि हमने सिर्फ वचन को ही फिट एंड फिक्स करके नहीं मांगना है। सिर्फ उपवास ही उपवास नहीं, सिर्फ प्रार्थना ही प्रार्थना नहीं, सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन इसके अलावा एक और एरिया ऑफ लाइफ है जिसमें हमको बढ़ते जाने की ज़रूरत है। वो है दान, परमेश्वर के राज्य के कामों में जोड़ते और बढ़ाते जाना है। तो हमको उन्नति की ज़रूरत है, हमें प्रमोशंस की ज़रूरत है, हमारी आर्थिक परिस्थिति बढ़ने की ज़रूरत है, हमको और भी ज़्यादा धन संपत्ति समृद्धि मिलने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में और ज़्यादा मात्रा में उंडेल पाए। आमीन। 8 वचन, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आमीन।
धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कंगालपन हमारा था, उसने उसके ऊपर लिया, और धनीपन उसका था, उसने उसका धनीपन हमको दे दिया। आमेन। एक्सचेंज हो गया है। अब हम धनी है, और हमारा कंगालपन जो पाप के कारण था, यीशु मसीह कुर्बानी में उठाकर लेकर गया, पाप को लेकर गया। अब कंगाली हमारे हिस्से नहीं है, अब धनी हमारा हिस्सा है। इस बात में मेरी सलाह यह है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। अपनी अपनी पूंजी के अनुसार। उसने ये नहीं कहा है कि आप अपने हद से बाहर निकलो और कुछ करो, ऐसा नहीं कहा है, लेकिन आप कितना खुद के ऊपर कम खर्च कर सकते हैं, कितना खुद की चिंताओं में कम बोएंगे, और परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर के कामों की चिंताओं में आप कितना ज़्यादा अलग करके दे सकते हो, वो आपको बजट करते समय आपने ये ध्यान रखना है। अपने दायरे में बहुत मामूली सा खर्च करना है, लेकिन परमेश्वर के दायरे में भरपूर उंडेल देना है। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। हालेलुया। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। ऐसा भी नहीं करना है हमने कि हम बस उंडेलते जाए और जैसे भी हो जाए हम दुख निकाल रहे, कष्ट निकाल रहे, मुसीबत निकाल रहे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको उसके अनुसार, हमारे बढ़ोतरी के अनुसार हमको और बढ़ोतरी देता रहता है। हमारे क्लेश कम हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। ओके। परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए। देखो, ये ट्रांजैक्शन है, हेवनली ट्रांजैक्शन। जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़ कर आगे जाते हैं, संपत्ति के साथ, धन के साथ, अब हमारे सब मेहनत की कमाई कहते हैं हम, वो सब के साथ उठा कर जितना एक्स्ट्रा में हम बोते जाएंगे, उससे ज़्यादा मात्रा में हमारे घटी के वक्त परमेश्वर दबा कर, हिला कर उमड़ता हुआ हमारी झोली में, हमारे खत्तों में भर देगा। आमीन। हमेशा तत्पर रहिए कि सिर्फ वचन में नहीं, सिर्फ प्रार्थना में नहीं, लेकिन देने में भी हमें कुछ चेंजेस करना है। ठीक है। लिमिट्स तोड़ते जाना है देने में भी। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। हालेलुया। तीतुस और उसके सहकर्मी 16 वचन से आगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है, जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है।
यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। साथी मसीहियों के लिए सहायता। 9 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। ऐसा न हो कि यदि कोई मकिदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए, तो हो सकता है कि उस भरोसे के कारण यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। हालेलुया। दान कैसे दे? 6 वचन से आगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। देखो, धन से आवश्यकताएं पूरी की जाती है, फिजिकल मटेरियल चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। इसके लिए जब धन हम देते हैं तो धन इसीलिए हम देते हैं कि परमेश्वर के राज्य में मटेरियल्स की ज़रूरत है, और लोग जो काम करते हैं उनके जीवनों की रोजी रोटी हो सकती है, उनके जीवनों का कुछ चीज़ें हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। हमको उसके विषय में कभी भी चर्चा नहीं करना है कि आपका धन में लेकर वो लोगों ने क्या किया, आपको नहीं देखना है, क्योंकि वो मटेरियल में ही खर्च होने वाला है। ओके, वो मटेरियल्स में ही उंडेला जाने वाला है। तो आपको वो मटेरियल्स देख के आपको ये नहीं बोलना है कि देखो हमारे ही दिए हुए पैसे से उन्होंने किया है, नहीं। ओके, क्योंकि पैसा मटेरियल्स के ही लिए दिया जाता है, और अगर मटेरियल्स आपको कहीं दिखते हैं आपके देने के बाद में, तो आपको आनंद करना है कि आपका रिवॉर्ड, प्रतिफल परमेश्वर की ओर से तय हो चुका है और निश्चित हो चुका है। आपका देना परमेश्वर ने योग्य ठहराया है, आपको आशीष किया है, और आने वाले आपके भी लाइफ में घटी होने वाली है उसमें आपको परमेश्वर सहायता करने वाला है। ओके, तो आपको कभी भी ये चर्चा का विषय नहीं बनाना है कि हमने दिया और इसके लिए वो लोगों ने किया, हमने इतना दिया इसके लिए उनको ये मिला। ये सब बकवास की बातें, ये सारी चर्चाओं की बातों को हम अपने अंदर से उगलना नहीं है, ये फालतू की बातें होती है। ओके, मटेरियल्स के लिए तो लगता है धन, और किसके लिए लगता है?
ओके, तो आवश्यकताओं के लिए तो लगता है धन, और किसके लिए चाहिए धन को, और क्या ज़रूरत है, किसको चाहिए और दूसरे कामों के लिए आवश्यकताएं हैं, इसीलिए तो धन की ज़रूरत है। फिनिश। तो अगर आवश्यकताओं के लिए गया है तो उसको हमने चर्चा नहीं करना है, कौन कहाँ पर गया, कैसे गया, किधर गया, वो कितने रईस है, वो कितने गरीब है, वो कितने लोग उनको देते हैं, कितने लोग हमको नहीं देते। ये सारी बकवादी को हमने अपने अंदर नहीं लेना है। हमने दिया है वो आवश्यकताओं के लिए ही दिया है। कोई उसको डिपॉजिट करके उसका इंटरेस्ट नहीं खा रहा है, कोई नहीं ऐसा कर रहा है। अपनी ज़रूरत में डाल रहा है उस पैसों को और इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो आप बिल्कुल चर्चा नहीं करना है। अगर हम बड़ी मिनिस्ट्रीज को भी देते हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी आवश्यकताओं में आप सहायता भेज रहे हो। ओके, अगर आप गरीब कोई है जिनके पास ज़्यादा धन नहीं है, गरीब नहीं लेकिन ज़्यादा धन नहीं है, उनके मिनिस्ट्रीज में आप दे रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी आवश्यकताओं को वो टच करने वाला है। ओके, तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं और वो डिपॉजिट करके उसका इंटरेस्ट खाते बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको गारंटेड बता रही हूँ, कोई नहीं मिलेगा। सब जन धन को लेते हैं, कहीं ना कहीं आवश्यकता में उसे जोड़ देते हैं। आमीन। तो आप किसी को तुलना नहीं करना है कि ये मिनिस्ट्री तो बहुत रईस मिनिस्ट्री है, इसको करोड़ों लोग देते हैं, हम क्यों दे। कभी मत देखो ऐसा। आपका 1 रुपये देना भी उनकी आवश्यकता में कैच किया जाता है, याद रखना ये बात को। ओके, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, और दूसरी बात, लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। ये सेवा है, देना ये सेवा है। ओके, और वो परमेश्वर के महिमा को प्रकट करता है कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। ओके, ये हमारा मसीही रूल है, आत्मा का नियम है, हमको देना है और हमको बढ़ चढ़ कर देना है। ये सोच के नहीं देना है उनको करोड़ों लोग देते हैं तो हम और एक एक्स्ट्रा क्यों दे। आप और एक एक्स्ट्रा बन के दे दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आवश्यकता में आपका टच जाने वाला है। आमीन। और उनकी और सबको सहायता, उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। हालेलुया। बहुत सुंदर सिखाया है पौलुस ने यहाँ पर। ओके, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। हालेलुया। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जब हम आगे बढ़ कर दौड़ कर हम सेवा में देते रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के लोगों के चहेते भी बन जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा उनके मन में हम छा जाते हैं। ठीक है, और वो जितना हम उनके मन में छा जाते हैं उतना ज़्यादा वो हमारे ऊपर अनुग्रह का आत्मा रिलीज़ करते हैं। उनके ऊपर जो वरदान है वो हम पर रिलीज़ करते हैं। उनके अंदर जो अभिषेक का तेल है उसका स्रोत में वो हमको शामिल करते हैं। उनके ऊपर जो प्रकाशनों को लाने वाला स्वर्गदूत है उसके प्रकाशन हम पर भी उतरना शुरू हो जाते। कितना क्या हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है। ओके, तो इसके लिए हमने हमेशा ध्यान रखना है, करोड़ों वाली मिनिस्ट्री रहे या 10 रुपए वाली काम करने वाली मिनिस्ट्री रहे, कोई भी रहे, हमने वो नहीं देखना है। हमने हमेशा ये देखना है उदारता और प्रसन्नता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा कर हमने बो देना है, ताकि हम उसका आवश्यकताएं जहाँ है उसके अंदर हमारा टच जाता है। ओके, आत्मिक टच हमारा वहाँ पर
पहुंच जाता है। ये परमेश्वर को मानने का बात है, आज्ञा पालन का बात है, और उसकी महिमा का ये सवाल है। ये महिमा हो जाता है परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद है। देखो, ये परमेश्वर ही ने दिया हुआ रास्ता है और धन्यवाद कर रहा है पौलुस। ये रास्ता परमेश्वर ने रखा है लोगों के ज़रूरतों के लिए। परमेश्वर के लोग खुद बढ़ चढ़ कर उठ कर आ जाते हैं। ये परमेश्वर का आत्मा है अंदर उनका, जो ये काम करवाता है उनसे। आमीन। और वो विवाद नहीं करता है, बकवाद नहीं करता है, बकवास नहीं करता है। ये मिनिस्ट्री करोड़ों की है। वो लोग, ये हम क्यों उसमें ऐड हो जाए, हम उनको दे जिनके पास नहीं है। ये सब बकवाद नहीं, हम सुनना नहीं है उसका। ओके, जिसको जहाँ देना है आज़ादी है, कहीं पर भी दो। आप उनके आवश्यकताओं में टच कर रहे हो, एक छोटा तिनका भी आप उनकी आवश्यकताओं का बोझ उठा रहे, तो फिर वो भी आपके लिए याद करते हैं और आपको आनंदित करते हैं। आपके लिए परमेश्वर की ओर आवाज़ें लगाते हैं। बहुत कुछ होता है माय डियर फ्रेंड्स, समझ जाइए इस बात को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, हमें देने वाला बना खुदा। हमने जितना वचन मांगा उससे ज़्यादा तूने हमें दिया खुदा। जितना हमने मांगा तुझे फिट एंड फिक्स कर, उससे भी ज़्यादा तूने हमें फिट एंड फिक्स करने वाले तेरे अनुग्रह से, तेरे आत्मा से भरे हुए दास और दासियों के बीच में हमें उंडेल दिया खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हमें कोई आत्मा के वर्षाव में तूने घटी रहने नहीं दिया। इतना बढ़ चढ़ कर पिता तूने हमें आशीषित कर दिया तेरे आत्मा के भागों में। और पिता, अब हम ये भी मांगते हैं कि हम आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार, उनको चाहिए उतना परमेश्वर उंडेल पाए खुदा परमेश्वर। हमें ऐसा धन संपत्ति दे खुदा परमेश्वर, ऐसा महान रीति से हमें परमेश्वर पिता इतना ज़्यादा हमें संपन्नता से भर दे कि हम जितना तू देगा वो उससे भी ज़्यादा परमेश्वर हम तुझे प्रॉमिस करते रहेंगे। तुझे तेरे राज्य में तेरे दास और दासियों के जो परमेश्वर तेरे दर्शन है उनके जीवनों के ऊपर, उसे पूरा होने के लिए पिता हम उंडेल पाए। अब फादर गॉड, हमारी वाचा परमेश्वर हमेशा बनी रहेगी और तू हमें उससे भी ज़्यादा देता रहेगा। ये हम विश्वास के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इन एरिया ऑफ लाइफ में हम रूखे सूखे पड़े ना रहे, इसमें भी तो हरियाली लेकर आ। जैसा हमने मांगा फिट एंड फिक्स कर, वैसा ही तूने इस एरिया में भी हमको फिट एंड फिक्स करना है और बढ़ चढ़ कर हमको उमड़ कर पिता हमें देने वाला बना। नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। La 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 la